So now start question number 4th, miscellaneous exercise, question number 4th, miscellaneous exercise, question number 4th. So 4th is, if A, B and C are real numbers, given A, B and C are real numbers and determinant value B plus C, C plus A plus B, C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A, determinant value given 0. Then show that either A plus B plus C is equal to 0 or A is equal to B is equal to C, and A, B, C given are real numbers, so that A plus B plus C is equal to 0. So use property and simplify. So this determinant is also in cyclic form, that is आप एलिमेंट R1 का एलिमेंट देख करके आप R2 लिख सकते हो, R2 को देख करके R3 लिख सकते हो. तो ऐसे में बताए थे कि यूजिंग ऑल रो और कॉलम्स, इस केस में ऑल रो या और ऑल कॉलम्स का यूज़ करना है. तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, R1 चेंज टू, इस सारे R2 R3 दोनों को इसमें ऐड कर दो. R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3. आपको लाना क्या है, A प्लस B प्लस C, जो प्रूफ करनी है आइदर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0. तो A प्लस B प्लस C किस टाइप का हम ऑपरेशन यूज़ करें ताकि टर्म आ जाए A प्लस B प्लस C. आप तीनों इसमें यदि ऐड कर दोगे ट्वाइस A प्लस B प्लस C, आप तीनों इसमें ऐड करो क्या बन जाएगा, ट्वाइस A प्लस B प्लस C. लिख दो. सो 2 इंटू A प्लस B प्लस C, here also 2 into A plus B plus C, and this term also 2 into A plus B plus C, and R2 R3 same. So C plus A plus B, B plus C, A plus B, B plus C, C plus A, and this is equal to given is equal to 0. गिवन डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0. सो आप R1 में प्रॉपर्टी यूज़ किए हो, देन यू चेक दैट एनी टर्म इज कॉमन फ्रॉम R1. ट्वाइस A प्लस B प्लस C इज कॉमन, सो टेकिंग कॉमन 2 इंटू A प्लस B प्लस C इज कॉमन, बिकम्स 1 1 1. R2 इज C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू 0. अब आप प्रॉपर्टी यूज करके क्या करना है, इसमें मैक्सिमम 2 एंट्री को 0 बनाना है, और यदि कहीं एलिमेंट 1 1 1 आ जाएं तो आप सब्ट्रैक्ट करके 0 कर दो. ये 1 1 1 आ गया, यूज करो प्रॉपर्टी, 2 को 0 कर दे. So use property C1 change to C1 minus C2, ये हो जाएगा 0, and C2 change to C2 minus C3, दोनों को चेंज कर दें, ये 2 एंट्री 0 हो जाएगा. So this imply twice A plus B plus C, आप C1 में से C2 माइनस कर रहे हो, बिकम 0. इसमें से यह माइनस करोगे A कैंसिल, बिकम्स C माइनस B, B टर्म कैंसिल, A माइनस C, एंड C2 माइनस C3, सो दिस इज 0, B कैंसिल, A माइनस C, हियर C कैंसिल, B माइनस A, एंड C3 सेम, B प्लस C, C प्लस A, ये सेम आ गया, इज इक्वल टू 0. तो अब R1 का 2 एंट्री 0 है. सो नाउ एक्सपेंड along R1, expand along R1.
So first write sign. So then sign is plus minus plus. It is not necessary written. Sign here plus minus plus. 2 into a plus b plus c. ये सब का एलिमेंट लिखोगे वैल्यू 0. देन राइट 1 इंटू 1 का कॉलम हटा देंगे, रो भी हटा देंगे. क्या बच गया एलिमेंट? c माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस a इज इक्वल टू 0. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. So 2 into a plus b plus c, cross multiply it. So this term c minus b into b minus a minus a minus c whole square is equal to 0. Simplify it. 2 into a plus b plus c. Now open the bracket. So c into b, bc, c into a, ca, minus b into b, minus b square, minus a plus. And it is expand a minus b whole square. So expand it and bracket open. Then sign changed. So a square plus 2ca, then minus c square is equal to 0. Now 2 into a plus b plus c, first write square term, that is minus a square, then write minus b square, then minus c square, then ab, that is plus ab, bc, that is plus bc, and 2ca minus ca, that is प्लस सी ए इज इक्वल टू 0. आपको प्रूफ क्या करना है? आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. सो दिस टू फर्स्ट टेकिंग माइनस कॉमन, फर्स्ट टेकिंग माइनस कॉमन, सो माइनस टेकिंग कॉमन. सो 2 ए प्लस बी प्लस सी, देन ऑल टर्म साइन चेंज्ड, minus ab minus bc minus ca is equal to 0. Sign change. Now multiply by 2 in this bracket. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस माइनस को राइट साइड कर दो, बिकम 0. सो a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab minus 2bc minus 2ca is equal to 0. This is equal to a plus b plus c into this 2a square. 2a square can written a square plus a square. So write 1a square. 2b square can also written b square plus b square. So write 1 here b square, then write 2ab, that is minus 2ab. ये सपोज करिए वन ग्रुप. ये ग्रुप क्यों बनाए समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर. सिमिलरली 1b स्क्वायर आर लेफ्ट, सो राइट b स्क्वायर, देन राइट 1c स्क्वायर, देन राइट माइनस 2bc प्लस 1c स्क्वायर आर लेफ्ट, सो c स्क्वायर, 1a स्क्वायर also left, then write a square, then minus 2ca is equal to 0. Now use formula. So a plus b plus c, this becomes a minus b whole square, a minus b whole square, this becomes b minus c whole square, and this becomes c minus a whole square is equal to 0. So their product is 0. This one factor, other factor is this is equal to 0. So either this 0 or this 0. This imply either a plus b plus c is equal to 0 or
a minus b whole square b minus c whole square plus c minus a whole square is equal to 0. And you check that this all terms are non-negative, because perfect square, this term is non-negative, that is always positive, non-negative. This also non-negative, all are non-negative, but whose sum is 0. This is possible when all are 0. So this implies all are 0, that is a minus b is equal to b minus c is equal to c minus a is equal to 0. This is possible when 0, when all terms are 0. आप 0 नहीं करोगे तो ये इसका सम वैल्यू 0 नहीं आएगा, बिकॉज सब स्क्वायर हैं, स्क्वायर दैट इज ऑल आर पॉजिटिव. ये सब 0 पुट करेंगे तभी इसका सम वैल्यू 0 आएगा. सो ऑल टर्म्स आर 0. So this imply either a plus b plus c is equal to 0. So this imply either a plus b plus c is equal to 0, or here a minus b is equal to 0. So a is equal to b, and b minus c is equal to 0. So b is equal to c, c minus a 0. So c is equal to a. This is the result. So either a plus b plus c is equal to 0, or a is equal to b is equal to c. So this is question number 4. Now question number 5. Question number 5. What is given question number 5? You read it. Question number 5. Question 5 is solve the equation. Solve means find the value of variable. Solve the equation, that is find the value of variable. So equation is, question number 5, equation is x plus a x x x x plus a x x x x plus a is equal to 0. Solve the equation. Solve the equation means find the value of variable term. What here variable term? X. So find the value of x. For this x, use determinant property, then value निकालना easy होगा. So first use property, and what is the purpose using property? Make maximum term be 0. How to make this term is 0? X plus a. So R1 change into R1 minus R2, यह टर्म आ जाएगा 0. R1 change to R1 minus R2, आप इस R1 इसमें यदि ये माइनस कर दोगे then become 0. So use property R1 change to R1 minus R2. अब इसमें माइनस करोगे ये एलिमेंट 0 आ जाएगा. एंड सिमिलरली R2 चेंज टू R2 माइनस R3. आप R2 ये इसमें से R3 माइनस करोगे भी 0 आ जाएगा. अब कहीं भी मैक्सिमम एंट्री को 0 बनाना है तो यूज प्रॉपर्टी एंड मेक्स मैक्सिमम एंट्री भी 0. सो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, इसमें से ये माइनस कर देंगे बिकम्स a, ये माइनस करोगे बिकम्स माइनस a, ये माइनस कर देंगे दैट इज 0. अब R2 माइनस R3 दैट इज 0, ये माइनस करेंगे a, ये माइनस करेंगे माइनस a, एंड R3 सेम, ये सेम R3 आ गई. दिस इज इक्वल टू 0. आप इधर R1 R2 में प्रॉपर्टी यूज़ किए हो. सो यू चेक दैट एनी टर्म इज कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2. हियर a इज कॉमन, a कॉमन लेना. R2 ऑल्सो a कॉमन, सो a स्क्वायर इज कॉमन. a कॉमन फ्रॉम R1 and a common from R2 also. Or when direct when use property, suppose use property C2 imply C2 plus C1
यदि इसको इसमें ऐड कर दोगे तो यह टर्म क्या हो जाएगा 0, तो आपका 2 इंटू 0 हो गया। फिर उसको एक्सपेंड कर दें तो ईजी होगा। ये प्रॉपर्टी यूज कर लें, C2 चेंज टू C2 प्लस C1। आप कॉमन ले भी सकते थे, बिना कॉमन ले प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। सो C1 सेम, दैट इज़ A0x, या इसमें ऐड कर दें क्या हो जाएगा 0, या इसमें ऐड कर दो A, या इसमें ऐड किए 2x, एंड C3 सेम 0 माइनस A x प्लस A इज इक्वल टू 0। तो इसका 2 इंट्री 0 हो गया। नाउ एक्सपेंड इट along R1, एक्सपेंड कर दीजिए। सो फर्स्ट साइन प्लस, सो A इंटू, आप A का कॉलम हटा देंगे, A का रो भी हटा देंगे, क्या एलिमेंट बच गया A माइनस A 2x x प्लस A इज इक्वल टू 0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, A इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको आप हटा भी सकते हो। A इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हटा दें, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, सो AX प्लस A स्क्वायर, देन माइनस, एंड हियर माइनस A इंटू 2x इज इक्वल टू 0। इस A टर्म को हम राइट साइड कर दिए, 0 डिवाइड बाई A इक्वल टू 0, और AX प्लस A स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस माइनस प्लस 2AX इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कॉमन ले लें इसमें से, और 2AX प्लस AX, दैट इज 3AX, दिस टर्म टेकिंग राइट साइड, माइनस A स्क्वायर। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर बाई 3A, that is x is equal to minus A by 3. So this is the solution. Similarly, question number 4, आप फोर्थ ट्राई कर सकते हो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. What is question number 6? 6th is prove that A square BC AC plus C square, and R2 is A square plus AB B square AC AB B स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ करनी है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। फर्स्ट यू चेक एनी टर्म इज कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 और R1 R2 R3। फ्रॉम C1 A is common, from C2 B is common, from C3 C is common. So taking common, taking common A, B and C from C1, C2 and C3, common ले लें। So from C1 A is common, so total common is ABC, total common ABC, A common from C1, so what is the C1? 1 A plus B, then B, here B common, so C, B, B common, then B plus C, here C common, so A plus C, C common, then becomes A, C common, then C, so ABC is common. Now main purpose is make maximum entry 0 of any one row or one column, that is maximum 2 into 0. So what is your now property? आप इस टर्म को इस 1 के हेल्प से किसी को भी 0 कर सकते हैं,
1 के हेल्प से आप किसी को भी जीरो कर सकते हो। 1 के हेल्प से इसमें b से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा ये। और आप सिंगल टर्म भी बना सकते हो, सिंगल टर्म इसी 1 के हेल्प से इसको जीरो कर दो। दैट इज इस 1 के हेल्प से क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करोगे और इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा जीरो। और सारे प्रॉपर्टी इसमें यदि तीनों दी इसमें ऐड कर दो क्या बन जाएगा, a प्लस 2b, कोई बेनिफिट उससे नहीं है तो आप जीरो कर दो। या b से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, ये जीरो हो जाएगा। और a प्लस b से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, ये भी जीरो हो जाएगा। और इन दोनों को जीरो भी कर सकते हैं, किसी को जीरो करो। तो इसको हम जीरो कर रहे हैं, दैट इज R3। इस एलिमेंट को जीरो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 1। 1 के हेल्प से किसी को भी जीरो करना हो तो उसमें उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या b को जीरो करना है, इसमें b से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीरो हो जाएगा। सो यूज प्रॉपर्टी R3 चेंज इंटू R3 माइनस b इंटू R1। R1 में b से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो। सिमिलरली a प्लस b को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ 1। तो 1 में a प्लस b से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें। सो एंड R2 चेंज टू R2 माइनस a प्लस b इंटू R1। जिस एलिमेंट को जीरो करना हो, 1 के हेल्प से जीरो करना हो तो वेरी इजी, 1 में जिससे मल्टीप्लाई कर दो वही टर्म आ गया और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकम जीरो। सो इज इक्वल टू ABC, R1 सेम 1 C a प्लस C, R2 प्रॉपर्टी यूज़ किए हो, a प्लस b से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, दिस बिकम जीरो। आप इसमें a प्लस b से मल्टीप्लाई कर रहे हो और b में माइनस कर रहे हैं किससे, a प्लस b इंटू सी। आप R1 में मल्टीप्लाई करेंगे ना a प्लस b से, तो इसे मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस b इंटू सी हो गया, ये लिख दिए। सिमिलरली हियर राइट R2 दैट इज a माइनस a प्लस b इंटू R1 दैट इज a प्लस c, हो गया R2। नाउ R3 b से मल्टीप्लाई करके माइनस करो R3 में, तो b से मल्टीप्लाई माइनस बिकम जीरो, b से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस c माइनस बी सी, यहाँ भी कर दें c माइनस b से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज b इंटू a प्लस सी। ऐसे यहाँ आप डायरेक्ट इस हाथ से एक्सपेंड भी कर सकते थे, इस स्टेप से आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिए, वैल्यू भी आ जाएंगे। ओके, नाउ एक्सपेंड अलोंग C1। सो दिस इज इक्वल टू ABC, फर्स्ट आर्ट एलिमेंट 1, तो 1 का कॉलम और रो को हटा दें, क्या बच गया एलिमेंट B, ये ब्रैकेट ओपन भी कर दें, माइनस CA माइनस BC, देन ये भी लिख दें, ये हटा हुआ और ये हटा हुआ है, ये ब्रैकेट ओपन कर दें, A माइनस इंटू कर दें इधर, सो A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB प्लस BC। देन आप क्या क्या किए हो, 1, तो 1 का आप कॉलम हटा दिए, 1 का रो हटा दिए, ये 2 एलिमेंट बच रहा है, इसको लिख दें आप। सो B प्लस C माइनस BC एंड ईयर ब्रैकेट ओपन, यह ब्रैकेट को ओपन कर दें, सो माइनस AB एंड माइनस BC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस इक्वल टू ABC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो B माइनस CA माइनस BC इंटू C माइनस AB माइनस BC, देन माइनस B प्लस C माइनस BC, और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, सो A माइनस A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB माइनस BC। अब इतना को ब्रैकेट ओपन इंटू करें, सिंप्लीफाई कर दें, जो प्रूफ करना आ जाएगा। और इससे इजी लग रहा है कि आप इसी को एक्सपेंड कर दें, आप यहीं से एक्सपेंड कर दें, ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। समझ में आ रहा है? इस लाइन से आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हो, तो इतना स्टेप नहीं लिखना होगा। आप यदि प्रॉपर्टी यूज करते हो तो इतना बना दीजिए, पर ब्रैकेट ओपन करो, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। और आप इसी स्टेप को डायरेक्ट यहाँ से एक्सपेंड कर दो, वैल्यू आ जाएंगी। सो सेम एज क्वेश्चन नंबर, आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्राई इट। ओके।